Anish, we can हरे go कृष्ण। ahead. यस यस। हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन राव की भागवतम क्लास में। सो आपको जैसे ही पहले व्हाट्सएप मैसेज में मिला, आज गेस्ट स्पीकर हैं इस्कॉन पुणे से। तो जस्ट मैं प्रभु जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो प्रभु जी वाज बोर्न इन अ पायस मारवाड़ी इन 1981 एंड जो भी schooling है वो बॉम्बे से किया प्रभु जी ने। एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम ऑडिबल ना? Yes, Prabhuji. Yes. Please continue. Okay. So he got introduced to Krishna consciousness in 1993 through a congregational preaching program, and Prabhuji, then he completed his MCA from VGTI University there in Mumbai, and Prabhuji was ranked 13, जिसका entrance exam था. So in whole state he was in rank 13. So बहुत ही स्कॉलरली प्रभु जी का पूरा बैकग्राउंड है अभी, और आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि प्रभु जी जब कॉर्पोरेट में काम भी कर रहे थे तो ही वाज अमंग 1% डिवोटीज वर्क, मतलब एम्प्लॉइज वर इन टॉप पोजीशंस। एंड देन प्रभु जी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया है फ्रॉम नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी बॉम्बे। एंड प्रभु जी स्कॉन में जो कुछ कोर्सेस हम जानते हैं स्कॉन के भक्ति शास्त्री कोर्सेस, तो प्रभु जी ने वो MIHE से किया है, एंड currently he is teaching also at SCON Pune, and he has also designed some courses known as 7 steps to success. So प्रभु जी वो courses भी लेते हैं, and he likes to play mridanga, harmonia and to do kirtan, and there are much more services. Actually this very long intro of Prabhu ji, just because of short of time I am just giving some brief. So we would like to welcome Prabhu ji to SCON Rao. Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस्कॉन राव के भक्तों का, विशेषतया प्राणेश्वर प्रभु एंड माधव कुमार प्रभु, जो कि बहुत ही अच्छे भक्त हैं, मेरे मित्र हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे टू स्पीक समथिंग ऑन द श्रीमद् भागवतम। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। आर यू एबल टू हियर क्लियरली? ओके, Yes, Prabhuji, very clear. थैंक यू। सो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। तो श्लोक आपके स्क्रीन पर अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, जिसमें कि भगवान के द्वारका में प्रवेश के क्रम को चर्चा किया जा रहा है। Lord Krishna's entrance into Dwarka. Okay, I'm just bringing the shlok. Okay. तो आपके पास उसका हिंदी मैं इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। I don't have a Hindi version, but I'll speak in Hindi. Okay. Okay, Prabhuji. If you want, you can read from the screen, Prabhuji. We have shared a screen, but I will whatever, share if you the are screen. comfortable. Yes, I will share the screen. Share screen. Okay. Start. I think now you are able to see my screen. Okay. Yeah, Prabhuji. Is the shloka visible? Okay. Yes. First canto 11th chapter, Lord Krishna's entrance into द्वारका, भगवान का द्वारका में प्रवेश। और इसका 33वां श्लोक आज हम लोग सुन रहे हैं। यद्यपि यसौ पार्श्वगतो रहो गतस तथापि तस्यांघ्रि युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदाच शलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्। और इसको फिर से एक बार आवृत्ति करेंगे। यद्यपि असौ पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्यांघ्रि युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदाच शलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्। इसका अनुवाद
Although Lord Sri Krishna was constantly by their sides, as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So, what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? इसका purport. Conditioned living beings are always after the favor of the goddess of fortune, although by nature she is moving from one place to another. In the material world, no one is permanently fortunate, however clever one may be. There have been so many big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings all over the world. And there have been so many fortunate men, but all of them have been liquidated gradually. This is the law of material nature, but spiritually it is different. According to Brahma Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddess of fortune. They are always in a lonely place also with the Lord. But still, the association of the Lord is so inspiringly newer and newer that they cannot quit the Lord for a moment, even though they are by nature very restless and are moving about. The spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. The living beings are by constitution feminine by nature. The male or enjoyer is the Lord, and all manifestations of his different potencies are feminine by nature. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as Paraprakriti or the superior potency. The material elements are Aparaprakriti or inferior potency. Such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. The supreme enjoyer is the Lord Himself, as stated in the Bhagavad Gita 5.29. The potencies, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive the natural color, and thus there is no disparity in the relation of the potent and potency. Generally, people engaged in service are always seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything in or outside the universe, it is happiness to be employed by Him. Once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service that will make one extremely happy. One need not seek the moving goddess of fortune without the relation of the Lord. Okay, so I will stop the screen sharing. ओके तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है. श्लोक के ऊपर चर्चा करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हमारा परम सौभाग्य है आप सभी भक्तों के बीच में एकत्रित होकर के हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण का पुनः द्वारका में प्रवेश हो रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके 33वें श्लोक से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस 33वें श्लोक को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। यद्यपि असौ पार्श्वो गतो रहो गतस तथापि तस्यांग्री युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदाच चलापि यत् श्री न जहाति करहिचित। Although Lord Sri Krishna was constantly by their sides as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? बहुत सुंदर श्लोक है। भक्ति या हम जो इस मार्ग में जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, उसमें हमें एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला ये श्लोक है। वो क्यों कह रहे हैं हम लोग? वो इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि आज के श्लोक में भक्ति करने का एक आधार प्रस्तुत किया जा रहा है। भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत को भौतिक संसार कहते हैं क्योंकि इसमें हर चीज भौतिक है, हर चीज का क्षय होता है। क्षय मतलब कि जिसका पतन होता है या जो चीज खत्म होती है, थोड़े समय तक रहती है, बाद में चली जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षय होना। एक रोग भी होता है जिसको कहते हैं क्षय रोग, है ना। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर खत्म होते चले जाता है। भौतिक संसार में कोई भी संबंध जो है, आप सब लोग अपने अनुभव से थोड़ा सा विचार कीजिए। कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता, कोई भी वस्तु के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वो धीरे धीरे क्षय होता जाता है, खत्म होते जाता है, कम होते चला जाता है। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल के दिनों में हॉस्टल में पढ़ते थे, तो जब छुट्टी के लिए घर पे आते थे, 2 महीनों की छुट्टी होती थी, समर की वेकेशन। तो जब छुट्टी के लिए घर पे आते हैं तो क्या होता है, अब जब हॉस्टल से निकल रहे हैं घर की ओर, तो मन में बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है कि घर जाएंगे, मिलेंगे और सब लोगों के साथ बात करेंगे, खेलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन 1 दिन, 2 दिन और 4 दिन होते होते तक क्या होता है, जो उमंग है, जो उत्साह है उन लोगों को मिलने का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उस उत्साह में कमी हो जाती है। अब हमें वैसा प्रेरणा या वैसा उत्साह नहीं लग रहा है कि अब उनसे मिलना है या ये करना है, वो करना है ना। आप सबको इसका अनुभव होगा। मुझे याद है कि बचपन में या आगे भी जब हम नौकरी करते थे, तो एक समय ऐसा हुआ था कि हम जब जॉब कर रहे थे, तो 2006 की बात है, हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी अपने पैसों से। बहुत मेहनत करके, बड़ा मतलब माता-पिता को मना करके
एक नई मोटरसाइकिल खरीदी। तो हीरो होंडा की वो मोटरसाइकिल थी और बहुत खुश था मैं कि ये मोटरसाइकिल मैंने खरीद ली है। और वो मोटरसाइकिल खरीदने के पश्चात जब हम उसको घर लेकर के आए, तो अगले दिन सवेरे सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ करके मैं सबसे पहले घर के बाहर जाकर के उस मोटरसाइकिल को देखने के लिए गया कि वो सही सलामत है कि नहीं है, ठीक तरीके से है कि नहीं। और इतना ही नहीं, चाबी लेकर के हम एक राउंड मार करके आए कि हाँ ठीक चल रही है। तो एक इस प्रकार का उमंग रहता है शुरुआत में। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे महीने बीतते गए, पहले हम खुद अपने हाथों से उसका टेक केयर करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, सब कुछ। चलाते समय भी हर स्पीड ब्रेकर पे हम धीरे धीरे स्पीड से उसको लेकर के जाते हैं, गाड़ी का बहुत देख रेख करते हैं। और उस समय अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को छू भी ले, कोई छू भी ले, तो ऐसा लगता है कि मान लो कि वज्रपात हो गया हो गाड़ी। बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगा। लेकिन धीरे धीरे उसी गाड़ी के साथ भी समय बिताते बिताते जब 2, 3, 4 साल हो जाते हैं, तब हमारा उसके प्रति उत्साह क्या होता है, अब हम मुड़ के भी नहीं देखते हैं। अब वो गाड़ी कई बार गिर चुकी है, कई बार पंचर हो चुकी है, कई बार क्या क्या हो चुका है, रिपेयर हो चुकी है। तो अब हमारा जो स्नेह है उस वस्तु के प्रति क्षय हो जाता है। जब बच्चे नई नई चीजों को खरीद करके लेके आते हैं, कोई नया खिलौना, कोई नया वीडियो गेम, कोई नया मोबाइल, तो किसी को भी देने से घबराते हैं। कोई व्यक्ति अगर मांग ले, हमारा पड़ोसी अगर मांग ले कि भैया आप नई गाड़ी लेके आए हो, थोड़ा दे देंगे क्या, सब्जी लेने जाना है। तो हम सोचते हैं मन में कि अरे यार, नया गाड़ी में कल लेकर के आया हूँ और ये बंदा मांग रहा है सब्जी लेने के लिए। तो हमारे मन में ये जो आसक्ति हो जाती है उन नई वस्तुओं के प्रति, तो हम उसको मना करना चाहते हैं, कुछ बहाना ढूंढते हैं, नहीं मुझे जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीत जाता है, कुछ सालों में क्या होता है, हमें ही पता नहीं रहता है कि हमारी गाड़ी किधर है। मैं इसका उदाहरण इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनली हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसा ही सबके पास अनुभव होगा कि कोई भी वस्तु को जब हम अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो बहुत उसमें आनंद होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो आनंद वर्धन होने के बजाय कम होते चला जाता है। वर्धन नहीं होता, कम हो जाता है। जैसे रिश्तों में भी ये बात को देखा जाता है, संबंधों में भी ये बात को देखा जा सकता है कि शुरुआत में जो हमारे संबंध होते हैं, जब कोई प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है, तो शुरुआत में क्या होता है, चांद सितारे तोड़ के लाने की बात करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। उसके लिए तो उसको नासा में या इसरो में भर्ती होना पड़ेगा शायद। हाँ, शायद वो लोग भी चांद सितारे तो तोड़ के तो नहीं ला सकते। हाँ, तो लोग इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। और बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद जब विवाह हो जाता है, तो सारे चांद सितारे धुल जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। अब वो पतिदेव और पत्नी जो है मार्केट में जाते हैं तो साथ साथ भी नहीं चलते, वो अलग चलते हैं थोड़ा सा और ये अलग चलते हैं थोड़ा सा, ऐसा देखा गया है। तो ऐसा ये भौतिक संसार का नियम है। इसमें कोई नवीन बात नहीं है, ये भौतिक संसार का नियम है कि यहाँ जो भी वस्तु है, जो भी हमारा स्नेह, प्रेम, राग है किसी वस्तु के प्रति, वो उस वस्तु से खत्म होते चला जाता है। इसके लिए तो लोग हर साल, हर 2 साल में इन चीज़ों को बदलते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन बदलते हैं। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स बहुत फ़ास्ट अपग्रेड होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनसे ऊब रहे हैं। लोग उनसे ऊबते जा रहे हैं और इस बात को समझ चुके हैं हमारे जो जितने रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट और बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़, और इसके लिए हर 6 महीने में नया-नया मॉडल निकलते रहते हैं। तो ये मानसिकता इस भौतिक जगत में प्रायः देखने को मिलती है कि लोगों का मन किसी एक वस्तु से कुछ समय के बाद ऊब जाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि हालांकि किसी वस्तु से हमारा मन उठ जाता है, लेकिन भोग करने की जो इच्छा है वो नहीं उठती है, वो बनी रहती है। वस्तु बदलता जाता है लेकिन इच्छा वही प्रबल बनी रहती है। बचपन से लेकर के आज तक
सभी लोगों को अनुभव है कि हमारे आनंद देने की जो वस्तुएं हैं उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले हम लोग खिलौने से खेलते थे, फिर अब बड़े खिलौनों के साथ खेलते हैं। पहले जैसे नकली गाड़ियों को चलाते थे, अब बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं, असली गाड़ियों को। पहले बच्चे टॉय किचन सेट के साथ खेलते हैं, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो अपना उनका छोटा सा गैस सिलेंडर होता है, गैस होता है, उनकी कढ़ाई, कुकर सब होता है, लेकिन प्लास्टिक के खिलौने होते हैं। और कुछ समय बाद असलियत में उन वही खिलौने के साथ वो खेल रहे होते हैं। अब असली में उनका एक किचन होता है जो जिसके ऊपर वो पका सकते हैं खाना वगैरह, तो उनके साथ खेल रहे हैं। तो वस्तुएं बदल जाती है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उस भोग करने की इच्छा से छुटकारा हम पा नहीं पाते हैं। हमारे मन में सतत ये चिंतन चलता रहता है कि हम कैसे नए-नए आनंद को प्राप्त करें। ये जीवात्मा की ये जो गुण है, इसको कहा जाता है तृष्णा। तृष्णा मतलब कि प्यास, भूख और प्यास। तृष्णा मतलब प्यास होता है, तो जीवात्मा की प्यास बनी रहती है कि कैसे वो नया-नया रस का आस्वादन करते रहे, रसास्वादन करते रहे। उसको हर समय कुछ नया चाहिए। जैसे कि आप अगर मान लीजिए एक हिल स्टेशन पे चले गए, किसी गर्मी की छुट्टी में पूरे फैमिली को लेकर के, और 3-4 दिन अब आपने वहाँ बिता लिए, तो शुरुआत के दिन आपकी जो भावना रहती है उस स्थान के प्रति, 7वें दिन वो भावना चली जाती है। और 2-4 बार अगर आप उस गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ चले गए हैं, तो 2-4 साल के बाद अब आपको नया हिल स्टेशन जाने की इच्छा होती है, अब वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। बच्चे भी बोलते हैं, "क्या पापा बार-बार वहीं जाते हो? हम लोग जा चुके हैं, कितने बार जा चुके हैं। अब तो बदली करो, दूसरे जगह जाओ।" ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो हमें हमेशा ये वस्तुओं में बदलाव चाहिए। हमें नए से नया रस का आस्वादन करने की हमारी एक तृष्णा जो है वो संतुष्ट नहीं होती है, वो प्यास हमेशा बनी रहती है, और उसकी पूर्ति करने के लिए हमें नया नया रस चाहिए। इसके लिए आजकल देखा जाता है कि लोग अपने संबंधों में भी बहुत जल्दी बदलाव करते रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग जब विवाह करते थे तो वो जीवन में एक ही बार होता था। जब एक विवाह हो गया तो बस वो जीवन के अंत तक वही रहने वाला है। लेकिन आजकल लोग जब तक उनका मन बना है तब तक विवाह का संबंध कायम रहता है, और कुछ समय बाद जब दोनों का मन उब गया है एक दूसरे से, तो वो दोनों अलग-अलग पार्टनर के साथ विवाह कर लेते हैं, नए व्यक्ति को खोजते हैं। इसको कहते हैं प्रभुपाद जी, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। भौतिक संसार में कोई व्यक्ति दूसरे की मदद या दूसरे की सेवा या दूसरे की सहायता तब करता है जब उसमें उसको भी कुछ मदद, सेवा या सहायता मिलती है, कुछ तो उसका भी लाभ होना चाहिए, तब वो करता है। हम्म, तो इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए इस मुहावरे को, तो वो होगा, आप मेरी पीठ खुजलाओ और मैं आपकी पीठ खुजलाऊं। देखिए, पीठ खुजलाने का जो जो श्रम है ना, वो खुद से नहीं किया जा सकता, पीठ तक हाथ पहुंचता नहीं है हमारा, तो उसके लिए हमको किसी व्यक्ति की मदद चाहिए। तो जब हम किसी व्यक्ति को मदद मांगते हैं कि आप हमारी पीठ थोड़ा खुजला देंगे क्या, तो वो बोलता है कि मैं क्यों खुजलाऊं। तो हम उसको आश्वासन देते हैं कि भविष्य में हम आपकी पीठ खुजलाएंगे, इसके लिए आज आप हमारी पीठ खुजला दीजिए। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। भौतिक संसार में जो लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ पार्टी मनाते हैं, एक साथ आनंद भोगते हैं, उसके पीछे मुख्य आधार यही है कि आप मुझे मदद करो तब मैं आपको आपकी मदद करूंगा, परस्पर इस प्रकार से। लेकिन इसके विपरीत आज के श्लोक में जो द्वारका की जो रानियां हैं, द्वारका की जो स्त्रियां हैं, द्वारका की जो महिषियां हैं, उनका भगवान के चरणों के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, उसका वर्णन है। तो एक तरफ जहां हम भौतिक संसार में देखते हैं कि जो भी रस है वो रसास्वादन धीरे धीरे एक वस्तु के साथ रहते रहते बोरियत होने लगती है, हमें वस्तु बदलना पड़ता है, हमें नया रस चाहिए, हमें नया स्थान चाहिए, नए वस्त्र, नए कपड़े, नए वस्तु चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो वस्तुएं बदलती रहती है लेकिन तृष्णा बनी रहती है। लेकिन दूसरी ओर आज के प्रसंग में हम लोग क्या सुन रहे हैं कि द्वारका की जो रानियां थी वो कृष्ण के चरणों के प्रति जो उनका जो भाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था,
नवम नवम, श्लोक में शब्द आया है नवम नवम, नया नया। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, भले ही हमें अनुभव नहीं है ऐसे किसी रस का, लेकिन कल्पना कीजिए, थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि अगर हमें तो मुख्य रूप से वस्तु के रसास्वादन से मतलब है, चाहे वस्तु कुछ भी हो। जब तक वो वस्तु हमें रसास्वादन दे रही है तब तक हम उसके साथ चल सकते हैं। सही बात है कि नहीं? We are not so much behind the object, we are behind our sense gratification derived from that object. हम वस्तुओं के पीछे नहीं हैं, हम वस्तुओं से मिलने वाले आनंद के पीछे हैं। और जिस दिन वो वस्तु आनंद देना बंद कर देती है तब हमारा उस पर से मन उठ जाता है। लेकिन भगवान या अध्यात्म से जुड़ी वस्तुओं का जो मुख्य प्रकृति है वो ये है कि उसमें दिन प्रतिदिन वस्तु वही रहती है और उसका आनंद बढ़ते चला जाता है। एकदम विपरीत है। एक तरफ भौतिक चीजों का आनंद घटते जाता है, वहीं आध्यात्मिक चीजों का आनंद वर्धन होते जाता है, बढ़ते जाता है। एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक इकोनॉमिक्स की थियरी प्रस्तुत की, जिसको एक लॉ के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अंग्रेजी में इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का भोग करते चले जाते हैं दिन प्रतिदिन, तो उससे मिलने वाला जो सुख है वो दिन प्रतिदिन कम होते चला जाता है। ये बात मैस्लो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने प्रस्तुत की। तो उनका एक पिरामिड है, वो पिरामिड मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आपको स्पष्ट हो जाता था कि जैसे जैसे कोई वस्तु को हम लोग ज्यादा भोगते चले जाते हैं तो उस हर एक एक्स्ट्रा भोग करने से जो उस वस्तु से मिलने वाला जो सुख है वो कम होते चला जाता है। ये बात एकदम सत्य है और ये तो इकोनॉमिस्ट भी मान रहे हैं। लेकिन ये सिद्धांत तो भगवान ने भौतिक जगत में बना के रखा है। दिन प्रतिदिन हम जितना किसी वस्तु को भोगते जाते हैं, हमारा उस वस्तु के प्रति मिलने वाला सुख आनंद कम होते चला जाता है। लेकिन हम लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बात में फिर भी कभी कभी स्थित नहीं रह पाते हैं, भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए हमें याद रहता है, जो चेतना है वो ढकी चली जाती है। फिर जब कोई हमें याद दिलाता है शास्त्रों को पढ़ने से या प्रवचन सुनने से या कोई जीवन में अनुभव होने से, तब हमें फिर से याद आता है, ओ ये बात सत्य है, तो इसका साक्षात्कार होता है। तो जहां भौतिक जगत इस प्रकार की प्रकृति है, वहीं आध्यात्मिक संसार में क्या होता है, हर दिन बढ़ते चला जाता है आनंद। जैसे शब्द आए नवम नवम। और क्या ये केवल एक कुछ लोगों की अनुभूति है? हम ये सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो द्वारका की रानियां हैं, इनका तो सहज स्नेह है ही कृष्ण के प्रति, और कृष्ण को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए शायद उनको ये इस प्रकार का अनुभव हो रहा होगा। नहीं, इसी बात की अनुभूति कई सारे लोगों ने की है, आचार्यों ने की है, भक्तों ने की है, भागवतम में आने वाले कई सारे पात्रों ने की है। तो इसी बात की अनुभूति कई लोगों ने की है, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग युगों में। तो इससे ये क्लियर होता है कि ऐसा सिद्धांत मौजूद है, केवल हमें मिल नहीं रहा है, हम इस सिद्धांत से अभी तक वंचित हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि 500 साल पहले आए, 550 साल पहले, उन्होंने अपने शिक्षा अष्टकम में क्या लिखा है कि भगवान के नाम का जप करते करते उसका जो आनंद है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन होता है। तो कोई व्यक्ति, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी बात तभी कह सकता है जब उसका उस वस्तु पे वो अनुभव हुआ हो। तो जो भावना, जो अनुभव द्वारका की महिषियों का हो रहा है, वही अनुभव चैतन्य महाप्रभु को हो रहा है जब वो नाम जप कर रहे हैं। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ते चला जा रहा है। और ऐसा ही अनुभव कई सारे संत, जैसे कि रूप गोस्वामी जो महाप्रभु के पार्षद रहे, उनका भी यही अनुभव है। वो कहते हैं कि प्रभु, आपके ये जो नाम है, 2.5 अक्षर का नाम कृष्ण, इस
इस नाम में क्या सुख है, क्या आनंद है, मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु मुझे ये लग रहा है कि इस नाम को जपने के लिए ये जो एक मुख और दो कान है, इस नाम को सुनने के लिए दो कान और जपने के लिए, कीर्तन करने के लिए एक मुख, ये सफिशिएंट नहीं है। मुझे हजारों करोड़ों मुख चाहिए और करोड़ों लाख करोड़ों कान चाहिए जिनसे मैं इन नामों को सुन सकूं। इसका अर्थ क्या हुआ? उनका भी आनंद बढ़ रहा है, वर्धन हो रहा है। तो इस प्रकार का अनुभव केवल एक दो चार कुछ लोगों का नहीं है, हर किसी व्यक्ति का है जो इसको इस प्रणाली में सीरियसली, जिसने इस प्रणाली को स्वीकार किया है, उन सभी का ये आनंद देखा जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सारी उपदेशजनक बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवात्मा जो है, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि इस संसार ने कई सारे स्वामियों को देखा है। 1:11:33 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस संसार ने कई सारे स्वामियों को देखा है, और कोई व्यक्ति कितना ही चतुर हो, जितने बड़े बड़े साम्राज्य कई लोगों ने बनाए हैं, इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कई बड़े बड़े रथी महारथी लोग आकर चले गए, जिन्होंने एक विश्व साम्राज्य बनाया, पूरे विश्व को अपने निरीक्षण में कर लिया, उनके स्वामी बन गए, चक्रवर्ती बन गए, कई आकर के कई लोग चले गए। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध उदाहरण हम लोग अक्सर देते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए महाराज शिवाजी का। आप सब लोगों ने महाराज शिवाजी का नाम सुना होगा, और उनके बारे में कुछ कथाएं भी सुनी होंगी कि बहुत ही शूरवीर धर्मपरायण राजा हुए 450 साल पहले। भक्त भी थे, भगवान को मानते थे, राम कृष्ण के उपासक थे। ऐसे तो दुर्गा के भक्त थे, लेकिन रामकृष्ण की कथाओं से, महाभारत रामायण से बहुत सारी शिक्षाओं को लेते थे, क्योंकि उनकी माता ने उनको उस प्रकार से प्रशिक्षण दिया था। तो शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े राजा तो हो गए, और उन्होंने स्वराज्य को स्थापना करने के लिए, है ना, महाराष्ट्र में वो कहते थे स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं। तो वो स्वराज को स्थापन करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी चुनौतियों को स्वीकार किया, इतने सारे जोखिम को झेला, और उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया, स्वराज को स्थापना करना। और उन्होंने कुछ हद तक किया भी, सफल भी हुए। दक्षिण और उत्तर के कई भाग तक, लगभग आधा भारत जो है नीचे का, लगभग उनके राज्य में आ गया। उत्तर के भागों को वो ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन जब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया 53-54 साल की उम्र में किसी कारण से, तो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद क्या हुआ, उनके जो पुत्र थे, 3-4 पत्नियां थी, उनसे अलग अलग पुत्र थे, तो उन पुत्रों में, उन माताओं में ये द्वेष भावना हो गई कि अब अगला राजा कौन बनेगा। हालांकि इन चारों में एक प्रत्याशी जो थे संभाजी महाराज, वो बहुत ही प्रबल थे और उनका ही दावा था, लेकिन फिर भी बाकी भी माताएं ये दावा कर रही थी, और फिर उन भाइयों में भी कलह हो गया, और अंततो गत्वा वो जो एकजुट एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, उनके ही परिवार के अगली पीढ़ी में वो बढ़ गया, टूट गया उनका सपना। और फिर ये चारों के बाद क्या हुआ, आज वो स्वराज कहीं पर भी नहीं है। तो क्लास दे रहे हैं, तो आज वो स्वराज कहीं पर भी स्थित नहीं है। आज शिवाजी महाराज चले गए 450 साल पहले, आज कौन राजा है, कोई और ही राजा बन गया है। इनके जाने के बाद मुगल राजा बने, ब्रिटिशर्स राजा बने। अब भारत में अलग अलग सत्ताएं, अलग अलग सरकार दावा कर रही है कि हम राजा हैं, और जनता सोच रही कि वो राजा है। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी ने कई सारे राजाओं को देखा है, अपने कई सारी सत्ताओं को देखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव बीन लिक्विडेटेड ग्रेजुअली। कोई भी व्यक्ति अपनी छाप को छोड़ करके इस भौतिक जगत में नहीं रह पाया है। इस दुनिया में कितने सारे धनी लोग हुए, वो सारे धनी लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 साल पहले के कोई धनी लोगों का नाम बताइए, वर्तमान के धनी लोगों का नाम शायद आप बता देंगे कि अंबानी है, बिल गेट्स है, या जो भी वॉरेन बुफेट है, या
वो फेसबुक का जो मालिक है वो है जुकरबर्ग, जो भी है। तो वर्तमान के धनी लोगों का नाम आप शायद बता देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 50 साल पहले के जो धनी सेठ थे उनका नाम बताइए, तो शायद हम लोगों को गूगल सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन थे भाई 50 साल पहले धनी लोग। और ये भी ठीक है, चलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका यस प्रभु। वीडियो विजिबल नहीं है प्रभु जी, वीडियो नहीं दिख रहा था प्रभु जी। तो ओके आपने ओके। ऑफ करके रखा है क्या प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, ऑन किया है मैंने। अभी दिख रहा है वीडियो? हाँ यस प्रभु जी, अभी हरे तो दिख रहा कृष्णा। है। यस प्रभु जी, अभी दिख रहा है। ओके, मैंने वो वेदाबेस खोला था, शायद इसके लिए वो वीडियो फ्रीज हो जाता है शायद। ओके, ओह ये क्योंकि मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य से पढ़ रहा था, तो वेदाबेस से। तो जो 50 साल पहले के जो धनियों की अगर हम बात करेंगे, तो शायद हम लोग को दिमाग खुजाना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन वो धनी लोग थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि 200 साल पहले कौन धनी लोग थे, उनका नाम बताइए, तो हमारे को गूगल भी नहीं मदद कर पाएगा शायद। तो इनकी छाप कितने समय तक है, इनका नाम कितने समय तक है? कुछ समय तक है, उसके बाद इनका नाम भी चला जाता है, कोई और धनी सेठ आ जाता है। ओलंपिक्स में हर साल कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ ओलंपिक रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन वो रिकॉर्ड कब तक रहता है? 1 साल तक रहता है। अगले ओलंपिक्स जो 4 साल में होंगे उस वहां तक वो रहता है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर कोई नया व्यक्ति उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सुपरसीड करके दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। लेकिन एक चीज देखी जा सकती है, भले ही हम लोग धनी लोग, शक्तिशाली लोग, दक्ष लोगों का रिकॉर्ड 200 साल पहले कौन थे, शायद उनकी गणना हम लोग न कर पाए, उनके नामों को हम शायद न ढूंढ पाए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 500 साल पहले कौन भक्त थे, तो उनके नाम शायद हम लोग बता पाएंगे। 500 साल पहले कौन भक्त थे? आप कहेंगे संत नामदेव थे, तुकाराम थे, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत थे। इसी प्रकार से उत्तर भारत में मीराबाई थी। कई सारे संतों के नाम हमें याद रहेंगे। तो संतों की जो प्रतिष्ठा है वो ज्यादा समय तक चलती है, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हैं। हालांकि उन्होंने धन नहीं कमाया, हालांकि उन्होंने बल भी नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने लोगों की श्रद्धा को कमाया है संतों ने। और इस प्रकार से इनका जो यश है वो कई सालों तक, कई सदियों तक चलता रहता है। जीसस क्राइस्ट जैसे कि 2000 साल पहले आए, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इनको जानते हैं। उनके बाद कई सारे और भी संत आए। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में बुद्ध आए, फिर बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में महावीर आए। तो ये सब तो कई साल पहले आए हैं ना। और इसी प्रकार से सनातन धर्म के अंतर्गत कई सारे और संत आए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं 500 साल पहले प्रकट हुए। मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य आए, कितने सारे आचार्य आए, इनका नाम हमें पता है। लेकिन जो धनी व्यक्ति आए आज से 100 साल पहले, उनका नाम भूल चुके हैं। तो यश भी अगर किसी व्यक्ति को चाहिए, तो यश भी कैसे कमाना चाहिए? भगवान से जोड़ करके ही कमाना चाहिए, अलग होकर के नहीं। तो यहाँ पर ये एक बात कही गई है तात्पर्य में। मैं थोड़ा सा इस वेदाबेस की ओर फिर से जा रहा हूँ एक बार, शायद वीडियो फ्रीज होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से आई विल कम बैक टू द वीडियो। 1 सेकेंड। प्रभु जी, कैन स्प्लिट स्क्रीन, दैट विल बी, मतलब वीडियो भी विजिबल हो पाएगा और वो वेदाबेस क्या करना पड़ता है उसके लिए? क्या करना पड़ता है? ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा है ना? ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द परपोर्ट। ओके, फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी देवी है वो बहुत चंचल है। लक्ष्मी देवी का एक स्वभाव होता है कि वो बहुत चंचल होती है, लेकिन वो चंचल लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को के प्रति चंचल नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी चंचला होने के कारण कुछ समय तक कहीं पर वास करती है, लेकिन वैसी लक्ष्मी देवी भी स्वयं भगवान के चरणों के प्रति इतनी आसक्त है कि वो उन चरणों को छोड़ नहीं पाती है हमेशा, क्योंकि उन चरणों से उन्हें नया नया रसास्वादन मिलता रहता है। ये एक बात भी सुंदर कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा, हम सभी जो जीवात्मा है, हम लोग क्या है? पर प्रकृति है।
जीवात्मा पर प्रकृति है और भौतिक संसार अपरा प्रकृति है, यानी कि निम्न है, और हम जीवात्मा तटस्थ होने पर भी पर प्रकृति है, यानी कि श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। अब जो तटस्थ होता है, तट स्थित, इसको बोला जाएगा तटस्थ। तो जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। हालांकि वो तट पे स्थित है। कौन से तट पर? एक तरफ उस तट के है भौतिक दुनिया, भौतिक संसार, भौतिक विचारधारा, भौतिक इच्छाएं, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक वस्तुएं। और इन दोनों के जो बाउंड्री पर स्थित है, बीचों बीच स्थित है, उसको कहते हैं तट। जैसे समुद्र का तट होता है, समुद्र का किनारा होता है, तो उस समुद्र में जो सी बीच होता है, वो कैसा होता है? बीच में होता है ना, इसके लिए उसको सी बीच कहते हैं। एक तरफ समुद्र है और एक तरफ भूमि है, और समुद्र का जो तट है वो तीसरा ही कुछ अलग होता है। ना तो वो समुद्र है ना भूमि है। रात को समुद्र हो जाता है, सुबह भूमि दिखाई पड़ती है वहां पर। उसकी रेती भी अलग होती है, उस पानी, उस मिट्टी में हमेशा नमी रहती है, गीलापन रहता है। तो ना तो वो गीला है ना सूखा है, वो क्या है? तट है। तो कभी कभी वो पानी से कवर किया जाता है, कभी कभी वो भूमि बन जाता है। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति समुद्र के तट पर घर नहीं बनाता, है ना। समुद्र के तट के जस्ट सामने लोग भूमि खरीदते हैं बंगला बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, और बहुत कीमत होती है उसकी। सी व्यू होता है उसमें। लेकिन उससे थोड़ा आगे जाकर के समुद्र के तट पर कोई बंगलो नहीं बनाता, है ना। समुद्र में रह करके स्टीमर शिप में, क्रूज लाइन शिप में रहते हैं लोग, उसका भी बहुत पैसा होता है। और ये सी बीच के सामने वाले बंगलों में रहने का भी बहुत पैसा होता है। लेकिन सी बीच पर रहने के लिए कोई नहीं चाहता है, क्योंकि वो बीच में है। वो किसी भी दिन अपनी प्रकृति पलट देगा, पानी से भूमि बन जाएगा, भूमि से पानी बन जाएगा। जीवात्मा भी इसी प्रकार से तट पे स्थित है। कभी कभी वो आध्यात्मिक शक्ति के भीतर प्रेरित हो जाते हैं, और अधिकांश समय भौतिक शक्ति के द्वारा आच्छादित रहते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा का टॉसिंग चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और ये जो जीवात्मा है भगवान की पर प्रकृति है, यानी कि श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। और वो क्या कर रहा है? श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अपरयम इतस्त्वम अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। ये जो पर प्रकृति है, ये अपर प्रकृति को भोग करने का प्रयास कर रहा है, इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। मैं कल के क्लास में बता रहा था कि ब्रह्मा जी ने 24 तत्व बनाए हैं इस सृष्टि में, और फिर मनुष्य ने उसको ले करके 24 करोड़ तत्व बना दिए हैं, वस्तुएं बना दी है। उन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई करके, कंबाइन करके, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश को घुमा फिरा करके कई करोड़ों चीजें बना दी है। आप अगर खाने के क्षेत्र में चले जाएंगे तो कितने करोड़, कितने लाखों वस्तुओं को भोजन के रूप में हम लोग देख पाते हैं, है ना। कितनी बड़ी लिस्ट है। और किसी भी घर के किचन में चले जाइए, सारी माताएं जानती हैं कि क्या, कैसे, क्या कॉम्बिनेशन करने से क्या टेस्ट बदली हो सकता है, क्या बनाया जा सकता है। तो मूल वस्तुओं का हमने क्या किया है? इसको कहते हैं विसर्ग किया है, सेकेंडरी क्रिएशन किया है हम सभी लोगों ने। तो मुख्य विषय जो आज का श्लोक का है वो ये है कि ये जो द्वारका की महिषियां हैं या रानियां हैं या द्वारका के जितने लोग हैं, वो भगवान के चरणों के प्रति उनकी जो आसक्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश का बहुत सुंदर वर्णन इस पूरे अध्याय में चल रहा है। प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका 33वां श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भगवान के द्वारका प्रवेश का बहुत सुंदर वर्णन है। मैंने जब ये अध्याय प्रारंभ से आज पूरा पढ़ा तो देखा कि इसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे भगवान आ रहे हैं, और जितने द्वारकावासी हैं वो भगवान के प्रति इतने उत्कंठित हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण अधिकांश समय द्वारका और द्वारका के पश्चात हस्तिनापुर में बिताया करते थे पांडवों के साथ। उनका बहुत स्नेह है पांडवों के साथ। जा जा करके कई महीनों तक वहां पर पांडवों के बीच में रहा करते थे। एक समय तो 8 महीने तक रुके थे। फिर उनको ध्यान आया, अरे मेरी एक दूसरी जिम्मेदारी भी है, वहां पर भी जाना है। लॉकडाउन हो गए थे वो, तो फिर वो द्वारका में वापस आए। तो भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं
तो लोगों का क्या भाव है उसका वर्णन यहाँ हो रहा है। और हम लोग ने सुना या पढ़ा कि भगवान कृष्ण को स्वागत करने के लिए सारे बड़े-बड़े जितने उनके सेनापति, उनके अधिनायक थे, वो सब भगवान के सत्कार करने के लिए बड़े-बड़े गिफ्ट और बहुत सारे उपहार लेकर के उनके पास पहुंचे, उनका सत्कार करने के लिए। ये केवल बाह्य नहीं है, इसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं, जो कि द्वारका के वासी अनुभव कर रहे थे। और रानियों का वर्णन यहाँ हो रहा है कि वो भगवान के चरणों का हमेशा विचार करती रहती थी, जिसमें उनका जो मन है दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जाता था, क्योंकि उनको बहुत रसास्वादन होता था भगवान के इन चरणों का स्मरण करने से। तो कृष्ण भक्ति ऐसा एक साइंस है, जिसमें हम लोग अगर जुड़े रहें, तो दिन प्रतिदिन हमारी भी जो चेतना है वो शुद्ध होगी, भक्ति में वृद्धि होगी, हमारा जो स्मरण है बढ़ने लगेगा, हमारा जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसका प्रैक्टिकल प्रमाण कुछ अगर है तो हमको भी बताइए हमारे लेवल पर। तो आप खुद देख सकते हैं, इस्कॉन के मंदिर में अधिकांश लोग जो जुड़ते हैं, अगर वास्तव में जो जुड़ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो उनकी जो रुचि है भक्ति में, वो धीरे-धीरे बढ़ने लग जाती है। ऐसे कई लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं। भारत में मंदिरों की कमी नहीं है, मंदिरों में जाने वाले लोगों की कमी नहीं है। मंदिर में जाते हैं, जन्मों-जन्मों से मंदिरों में जा रहे हैं लोग। कुछ-कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर किसी मंदिर में 20, 30, 40 साल से जा रहे हैं। लेकिन उनका एक सेट पैटर्न है, जाएँगे, थोड़ा कुछ पूजा करेंगे, घंटी बजाएँगे, फिक्स टाइम पे जाएँगे, फिक्स टाइम पे वापस आ जाएँगे। लेकिन जैसे ही लोग इस्कॉन के मंदिर से जुड़ जाते हैं, शुरुआत में 10-5 मिनट के लिए जाते हैं, फिर जब धीरे-धीरे जाते हैं तो कुछ क्लास सुनते हैं, कुछ कीर्तन में बैठ जाते हैं तो आधा घंटे के लिए जाने लगते हैं। फिर क्या होता है कि और आगे बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे एक उत्सव होता है तो सेवाएँ भी आ जाती है, तो 2-4 घंटे के लिए रुक जाते हैं। घंटे तक मंदिरों में रुक जाते हैं और बाहर वाले लोगों को ये प्रश्न पड़ता रहता है कि अरे तुम लोग इस्कॉन मंदिर में जाकर के करते क्या हो? इतना क्या 6-6 घंटे तक वहाँ पर क्या करते रहते हो? अब हम उनको बोले कि सत्संग कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तो उनको विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि उनको ये सिद्धांत ही नहीं पता है कि इसमें आनंद का वर्धन भी हो सकता है भौतिक संसार में। सब लोगों को लगता है कि भौतिक संसार में तो आनंद का वर्धन हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हर चीज़ का क्षय होता है। उसी मानसिकता से वो जब देखते हैं तो उनको ये विश्वास नहीं होता कि भक्ति में आनंद का वर्धन हो सकता है। लेकिन प्रामाणिकता से हम लोग ये देख सकते हैं। ये प्रमाण हम सभी के पास है। इसी प्रकार से हम लोग धीरे-धीरे माला जप करने स्टार्ट करते हैं तो 1 माला करते हैं, फिर 2 माला करते हैं। फिर कभी-कभी मन में स्वयं इच्छा भी हो जाती है कि और माला जपा जाए। हुँ? अधिकांश समय नहीं होती होगी, लेकिन धीरे-धीरे ये इच्छा जाग जाती है कि कभी किसी दिन ऐसा मन करता है कि थोड़ा आज है ना अच्छे से नाम जप करना चाहिए। होता है कि नहीं? और फिर ऐसे ही हम देख सकते हैं कि शुरुआत में शुरुआत में जब हम मंदिरों में जाते थे इस्कॉन मंदिर में, तो शायद बस घंटी बजाते थे, दर्शन करते थे, चले आते थे। लेकिन अब 1 आध 2 घंटा बैठ कर के प्रवचन सुन सकते हैं। बिना हिले-डुले, जैसे कि मैं यहाँ कैमरे पर देख रहा हूँ आप सभी भक्तों को। हाँ, बिना हिले-डुले भक्त लोग 1 घंटे तक तो कम से कम सुन पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारी वृद्धि हो रही है कि नहीं, है ना? वी आर इंक्रीजिंग। तो ये प्रमाण है, प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। और फिर माधव कुमार प्रभु जैसे भक्त, सुंदर, बहुत अच्छे, उत्कृष्ट भक्त अपने जीवन को पूरी तरीके से भक्ति में न्योछावर कर देते हैं। पढ़े लिखो मंदिर में जुड़ना मतलब कि अकाल्पनिक है लोगों के लिए। बाहर के लोग सोच नहीं सकते हैं। अरे कैसे इतना पढ़ लिख करके लोग पूरा सब कुछ छोड़ करके मंदिर में जुड़ जाएँगे? ये आनंदाम बुद्धिवर्धनम है। इसके लिए भौतिक संसार से ज़्यादा आनंद इसमें है, इसके लिए लोग इसमें जुड़ जाते हैं। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को ये धारा मिली है भक्ति की, इसमें हम लोग अगर जुड़े तो बहुत हमारा जो भक्ति में जो रसास्वादन है बढ़ते चला जाएगा। रसास्वादन की आशा करना कोई अपराध नहीं है, कि अगर कोई भक्त सोचे
कि भक्ति में इसके लिए रहना है क्योंकि इसमें बहुत आनंद मिलेगा, तो आनंद मिलने की अभिलाषा रखना वैसे कोई अपराध नहीं है कि भगवान से तो हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए, भगवान को सेवा देनी चाहिए, नहीं। भगवान है आनंद के घनीभूत स्वरूप, उनके संग रहेंगे तो आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन हमें अपराधों से बचना चाहिए, हमें जो वर्जित वस्तुएं हैं उनसे बचते रहना चाहिए, जो जो करना चाहिए, दवाई और परहेज किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करते हैं, तो दवाई क्या है उसको पता रखना चाहिए और परहेज क्या है उससे बचना चाहिए। तो दवा है हरिनाम संकीर्तन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, शास्त्र पठन कीजिए, प्रवचनों का श्रवण कीजिए, कथाओं का, और सेवा कीजिए मंदिर में, और प्रचार के कार्य में हाथ बटाइए, तो आपको निश्चित रूप से उसका आनंद होगा। और परहेज क्या है? अभक्तों का संग मत कीजिए, अपराध मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, निंदा या इधर उधर किसी द्वेष भाव से किसी भक्त के बारे में कुछ गलत बात फैलाने का कार्य मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। जो करने लायक है वो कीजिए, जो नहीं करने लायक है उनको त्याग दीजिए, तो भक्ति में आप बने रहेंगे और बहुत कुशलता से आप भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। तो क्योंकि समय 9:15 तक का ही है और 9:14 हो गए हैं, तो प्रश्न भी लिए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मुझे वैसे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है आप सभी भक्तों के बीच में जो आप लोग जुड़े हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माधव कुमार प्रभु, और आप सभी भक्तों को एनकरेज करना चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से प्रचार कार्य में जुड़े रहिए। प्राणेश्वर प्रभु जी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, मैं जानता हूं उनको बॉम्बे के समय से, तो ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर काइंडली टेकिंग अप दिस प्रीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Jai. Thank you very much, Yes, Prabhuji. Thank you very much. Yes, Prabhu. So yeah, किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो please you can unmute yourself and ask, or you can write also on chat, whatever. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद Dhanvat Prana, जी। Abhay Chaitanya Prabhuji. I think Abhay Chaitanya Prabhuji is there. Yes, Prabhu. Yes. So wonderful lecture, Prabhuji. Thank you for delivering this lecture for us. I have just a question on this Anandam Buddhivardhanam. Sometimes what happens in some of the organizations, like they seem to be a spiritual organization, but they are not so spiritual. And there also, when people, and I will not take names, but you can understand some of the organizations where people are very dedicated, but after some times the gurus, they go to jail and in some illicit activities. Not some, they are actually mainly for illicit activities, and spirituality or religion remains as a means to be involved in those illicit activities. But the devotees or the people who are connected to those organizations, they also experience some kind of happiness, increasing happiness. So that is how they also dedicated more and more time when they are connected to the organizations gradually. It is something similar happened to the spiritual organization. So how do you differentiate that the bliss or the happiness that I'm getting, or the increasing amount of happiness that I'm getting every day in spiritual organization, is how it is different from the kind of happiness, increasing happiness that they get from those pseudo organizations? Yes, Prabhuji. Yes, that's a very nice question. It's a very valid thing which we can see. तो मैं हिंदी में उत्तर देना है ना, तो आई विल स्पीक इन हिंदी। ये प्रभु जी का प्रश्न ये है कि ऐसा देखा जाता है कि कई सारे ऐसे तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और उनसे जुड़े हुए कई सारे उनके भक्त भी रहते हैं, तो उनका भी जो आनंद है या उनका भी जो शरणागति है अपने गुरुओं के प्रति, वो भी बढ़ता है। जैसे कि हम लोग कई सारे आध्यात्मिक संस्थाओं में देखते हैं, और कभी-कभी इन संस्था के जो आचार्य हैं या इनके गुरु वर्ग जो हैं, वो कभी-कभी कुछ
अश्लील कार्य भी करते हैं, इसके बावजूद भी ये जो शिष्य हैं उनके प्रति पूरी तरीके से शरणागत होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ये प्रभु जी का प्रश्न है, राइट? तो थैंक यू। तो हालांकि ऐसा देखा जाता है, ये सही बात है भौतिक संसार में। तो पहली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति से परे कुछ करता है, तो उसको एक सुख की अनुभूति होगी, जो कि भौतिक सुख से थोड़ा ऊपर होता है। भौतिक सुख में प्रधान भाव ये है कि व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखता है। सबसे पहली बात ये है। भौतिक सुख में सबसे प्रधान भाव ये है, सिद्धांत ये है कि हम केंद्र में हैं। अब हम केंद्र में रख करके जब हम अपने आप को रखते हैं, तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कभी-कभी व्यक्ति भगवान को भी इस्तेमाल कर लेता है। तो वो जो प्रक्रिया है उसको आध्यात्मिक नहीं कहा जाता है। जब व्यक्ति खुद के सुख प्राप्ति करने के लिए भगवान को भी इस्तेमाल करता है, तो दैट्स नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक क्या है? जब हम कृष्ण को प्रेम या कृष्ण को आनंद देने के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। तो ये क्लियर डिमार्केशन है। भौतिक मतलब कि हम केंद्र में हैं, आध्यात्मिक मतलब कि कृष्ण केंद्र में है। ठीक है? इसको चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। जो खुद के इंद्रिय के लिए किया जाने वाला वस्तु है, जो कार्य है, उसको कहा जाता है काम। अब काम में ये आवश्यक नहीं है कि केवल हम भौतिक वस्तुओं का ही भोग करें। व्यक्ति गुरु का भी भोग कर सकता है, भगवान का भी भोग कर सकता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसको बोला जाता है काम। जैसे हम लोग सुनते हैं अलग अलग प्रकार के शिष्य होते हैं, गुरु सेवी होते हैं, गुरु भोगी होते हैं, गुरु त्यागी शिष्य होते हैं। तो जो गुरु सेवी है वो गुरु की सेवा करते हैं, लेकिन गुरु भोगी भी होते हैं। कुछ लोग दीक्षा इसके लिए लेते हैं कि उनको गुरु जी का आश्रय मिलेगा, और गुरु जी के आश्रय मिलने से उनके काम निकल जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलने से उनका धंधा व्यवसाय जो है अच्छा होगा, उनके जीवन में आने वाले जो विघ्न है वो गुरु जी के आश्रय लेने से वो टल जाएंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं? गुरु भोगी बन गए। और तीसरे होते हैं गुरु त्यागी, मतलब कि वो शिष्य गुरु को त्याग देते हैं, सिर्फ अपना काम होने तक गुरु के साथ रहते हैं, बाद में गुरु को त्याग देते हैं, ऐसे गुरु त्यागी शिष्य। तो ये जीवात्मा को हमेशा चिंता करते रहना है कि मैं अपने आप को केंद्र में रख रहा हूं या कृष्ण को केंद्र में रख रहा हूं। ठीक है? हमारा जो सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, उसमें हम कृष्ण को केंद्र में रखने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? जैसे हम भोग लगा रहे हैं, शुरुआत में तो हर जीवात्मा भगवान से भी भोग प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि लोग किस चीज को भोग लगाते हैं? जो उनको पसंद है। हम कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में चिंतित नहीं रहते हैं शुरुआत में हमें अपना पर्पस निकालना है कि हमें प्रसाद खाना है, तो हम लोग वो चीज बनाएंगे जो हमें पसंद है ना? जैसे कि चाइनीज बनाएंगे या कुछ ऐसा तड़का डाल के बनाएंगे जो, क्योंकि हमें वो पसंद है। तब हम कृष्ण की चिंता ज्यादा नहीं कर रहे, झटपट में भोग लगा देते हैं। और हम लोग मानते हैं कि द डेटी इज अ भोगा ट्रांसफॉर्मिंग इनटू प्रसादम मशीन। जो ये क्या करते हैं, वो भोग को प्रसाद में कन्वर्ट करने वाली ये मशीन है, तो इसके सामने रख दो, झटपट से घंटी बजा दो, तुलसी। तो उसमें भी हमारा भाव क्या है? खुद की इच्छा है। लेकिन जब प्रामाणिकता से हम लोग भक्ति के मार्ग में जुड़े रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर सटल चेंजेस होते जाएंगे। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, फिर हर हफ्ते में अपडेट्स आते रहते हैं। उस अपडेट से क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर और बेटर होते चला जाता है। ऐसे धीरे धीरे हमारे भक्ति में अपडेट्स होते चले जाएंगे। सूक्ष्म रूप से होता है वो। मोबाइल चालू है, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं किया, लेकिन अपडेट से क्या हो गया? कुछ एक चीज पैचअप हो गया। इस तरीके से हमारे आध्यात्मिक विचारधारा में परिवर्तन होने लगेगा, और वी विल कम टू अ पॉइंट वेयर वी विल बी एक्चुअली जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड। जब शुरुआत में नाम जप करते हैं, तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी नाम तो जप कर रहा हूँ, लेकिन है ना, नाम में आनंद नहीं आ रहा है प्रभु जी, बहुत कठिनाई से नाम जप हो रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो मतलब अब नाम जप करने में व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है। आनंद स्वयं मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन आनंद ढूंढना मतलब अब हम नाम जप को भी अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। मैं नाम जप इसके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि नाम जप में आनंद मिलना चाहिए।
तो कृष्ण को केंद्र में बनाना, इसके लिए नाम जप क्या है, हमारे शास्त्र बताते हैं ये सेवा है, सेवा, नाम की सेवा है। नाम सेवा, प्रसाद सेवा, विग्रह सेवा, धाम सेवा, हम लोग नाम की सेवा कर रहे हैं। और फिर नाम प्रभु जो है परस्पर में हमें आनंद दे, ये उनकी इच्छा है। मैं आपके प्रश्न को ही उत्तर देते हुए ये पॉइंट बताना चाहता हूं यहाँ पर भक्तों को कि देखिए, अगर नाम जप करने में अगर हमें रुचि लगे, आनंद आए तो अच्छी बात है, न आए ना तो भी नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि हम नाम सेवा कर रहे हैं, नाम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमें प्रोसेस के अनुसार जप करना है, जैसा बताया है आचार्यों ने कि ध्यान पूर्वक जप करना है, एक स्थान पे बैठ करके जितना हो सके संभव हो ध्यान पूर्वक श्रवण करते समय ये नाम जप करना है। और वैसे अगर नाम जपने में अगर हमें आनंद आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न आए उसके बाद भी अगर नाम जप कर रहे हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि यू आर स्टिल डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट लाइकिंग एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू डू बिकॉज द ऑथोरिटीज आर सेइंग। कोई आचार्य कोई गुरु कह रहे हैं कि ये करते रहो, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप कर रहे हो, तो इसके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यू आर नॉट लाइकिंग इट, स्टिल यू आर डूइंग इट। तो ये मेरा विषय है कि कृष्ण को प्रसन्न करने का, जो कृष्ण को केंद्र में बनाने का जो प्रक्रम है, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में बताया गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ कार्य होते हैं, जहां व्यक्ति खुद को केंद्र में उतना रखता नहीं है, दिखता नहीं है, और कृष्ण को भी केंद्र में नहीं रखता। जो लोग बोल रहे हैं वो सब इन दोनों के बीच वाले लोग हैं। जैसे कि मानवता के लिए किए जाने वाले कार्य, कुछ लोग कंबल बांट रहे हैं, कुछ लोग दवाइयां बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है फुली 100% दे आर नॉट डूइंग फॉर देमसेल्फ, 50% उनके नाम और प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, लेकिन 50% जन कल्याण भी कर रहे हैं, पैसा लगा करके। जैसे वृंदावन में, अभी मैं वृंदावन में हूँ, तो पैसा लगा करके लोग भोजन सप्लाई कर रहे हैं, और हमने देखा यहाँ पर कि गाड़ियों में लेकर के साउंड सिस्टम में अनाउंस करते हुए लोग जा रहे हैं, प्रसाद 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 लीजिए प्रसाद, और लोगों को बांट रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो अब ये तो प्रसाद है, तो प्रसाद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाह्य दृष्टि में, बाहर के जगत में जो लोग ये सूडो स्पिरिचुअल मतलब इन दोनों के बीच के कार्य कर रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार का सुख तो मिलता है। और कुछ लोगों को वही सुख चाहिए, इसके लिए वो उसी सुख में फंस भी जाते हैं, अटक जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि डायमंड खरीदने वाले जो लोग होते हैं, जो डायमंड की दुकान में जाते हैं, वो कम लोग होते हैं जिनको असली डायमंड की पहचान होती है। और इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में कई सैकड़ों लोग होते हैं, हमेशा वहां लाइन लगी रहती है, क्योंकि वहां सस्ता मिल रहा है। तो कुछ लोग जो है इस भौतिक संसार में भौतिक सुख नगण्य है या भौतिक सुख निम्न है, वो समझ गए हैं, बट दे हैव नॉट रियलाइज्ड द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। इसके लिए वो लोग इन कार्यों में जुड़ जाते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम किसी वस्तु में या व्यक्ति में श्रद्धा रख लेते हैं, 10-20 साल जब हम अपनी श्रद्धा रख लेते हैं, तो फिर हमारी वो श्रद्धा जो है वो ब्लाइंड फेथ बन जाता है। इन स्पिरिचुअल लाइफ ब्लाइंड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। शुरुआत में हमारा जो फेथ होता है वो डाउटफुल फेथ होता है, डाउटिंग फेथ, मतलब कि हम वेरीफाई करते हैं हर चीज को कि ये संस्था में ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो हमारी श्रद्धा है हमारे गुरु में और भगवान में, वो ब्लाइंड हो जानी चाहिए कि अब भगवान कुछ भी करे हम तैयार हैं, हमें कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद अगर किसी वैश्य के घर में भी गया है, तो ये मेरा विश्वास है कि वो प्रचार करने के लिए ही गया है। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक ब्लाइंड फेथ इन नित्यानंद प्रभु, कि वो नित्यानंद प्रभु अगर कहीं गए हैं तो वो प्रचार के लिए ही गए हैं, चाहे वो वैश्य के घर भी गए हों। सो लाइक दैट। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे गुरुओं में श्रद्धा हो जाती है, फिर वो गुरुजन अगर कुछ भी करते हैं तो उनको लगता है कि ये भी उनकी ही लीला है। जेल गए हैं तो लगता है ये अब कृष्ण लीला कर रहे हैं जेल में। बहुत सारे स्त्रियों के साथ अगर उनका मिलन होता है तो उनको लगता है ये कृष्ण की रासलीला कर रहे हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आना। इस प्रकार से उन लोग का जो श्रद्धा है उनके गुरुओं में ब्लाइंड फेथ हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग को शास्त्रों के अनुसार हमेशा वेरीफाई करते रहना चाहिए और देखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया गुरु साधु शास्त्र, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ गुरु के ऊपर आधारित हैं, साधु नहीं है और शास्त्र नहीं है। तो एक टांग पे चल रहा है इनका कार्यक्रम, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है, 3 टांग पे आधारित दिया है। देखिए कोई भी चीज को स्थिर अगर बनाना है तो 3 पिलर तो चाहिए, है ना।
3 पे टिका रहेगा तो वो जो छत है बनी रहेगी। लेकिन अगर उसमें 2 टांग रही या एक ही रही तो क्या होगा? वो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, कभी भी वो चीज जो बैलेंस की है वो गिर सकती है। तो ऐसे इन लोग जो है, ये जो संस्थाएं हैं, इनमें यही देखा जाता है कि ये लोग एकमात्र एक गुरु से आसक्त रहते हैं, और जब तक गुरु है तब तक वो गुरु से जुड़े रहते हैं। गुरु जी चले जाने के बाद वो शिष्य भी कहीं चला जाता है और वो संस्था भी कहीं बंद हो जाती है, या उसमें कई सारे बहुत सारे डिफरेंशिएशंस या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसमें। तो क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार के कस्टमर्स हैं, वो लोग इस प्रकार के सुख को खोज रहे हैं, ऐसे ही इसके लिए ही इनको ऐसे गुरु मिलते हैं, सूडो गुरुज मिलते हैं, और ये लोग पूरी तरीके से उनके पर अंधविश्वास करते हैं। इसके लिए दे आर नॉट एबल टू सी थ्रू द आई ऑफ गुरु साधु शास्त्र। हम लोग को इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, कम से कम शुरुआत में तो रहना ही चाहिए। एंड वंस आवर फेथ बिकम्स स्ट्रांग इनफ, जो श्रद्धा है जब वो निष्ठा बन जाती है, तो श्रद्धा तरल होती है, लिक्विड होती है, लेकिन निष्ठा कैसी होती है? सॉलिड होती है, इट इज रॉक सॉलिड। तो तो वो श्रद्धा जब निष्ठा बन जाएगी तो फिर उसको उसमें हमें संशय नहीं होगा। तो मुख्य रूप से आपके प्रश्नों को उत्तर देते हुए मैंने 2 बात बताई कि एक है स्वप्रधान चेतना, आत्मेंद्रिय, और दूसरा है कृष्ण को मध्य में रखना, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करना। तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे ही सुख को ढूंढ रहे हैं जो कि थोड़ा भौतिक के ऊपर है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है, इसके लिए वो लोग उसमें स्थित रहते हैं। और वैसे हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी उसमें रुचि इतनी क्यों है। जब व्यक्ति भौतिक जीवन व्यापन कर रहा है और उसमें पूरा सुख प्राप्त कर रहा है, कई बार प्रताड़ित होने के बाद भी उसके उस भौतिक सुख से उसकी आशा नहीं कम हो रही है, तो फिर दिस इज समथिंग मोर द हायर देन दैट। तो इसमें व्यक्ति का जो जो क्या कहेंगे, so if a person is fully dedicated to these kind of pseudo causes, there is no आश्चर्य, definitely, because people who are in the material world, जो भौतिक संसार में, वो लोग भौतिक संसार में इतने डेडिकेटेड हैं, जबकि पीटे जाते हैं। तो फिर why people who are pseudo spiritual, उनकी श्रद्धा में अगर वर्धन हो रहा है तो ज्यादा ये आश्चर्य की बात नहीं है, निश्चित हो सकता है ये। Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you very much for an elaborate answer. So, we have some more questions. You can take. Some people are. Yes, Prabhu जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैट में एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा सुनते हैं कि कभी किसी को किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता है, किसी में कम, जैसे रीडिंग में कम, हियरिंग में ज्यादा। सो इज दैट राइट? बिकॉज इट हैपेंस विद मी टू। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई एक अंग में बहुत ज्यादा रुचि हो, ये अच्छी बात है। जैसे कुछ लोगों को विग्रह सेवा करने में रुचि होती है, तो वो लोग विग्रह सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसी रुचि होती है कि वो लोग सेवा करने में या प्रचार करने में या मैनेजमेंट करने में रुचि रखते हैं। तो हर व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार भक्ति में जुड़ना चाहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक मिनिमम तो हमको, जो मुख्य अंग हैं, जो मेन लिम्स हैं, उनको करना ही चाहिए। सम बेसिक मिनिमम, जैसे कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि प्रभु जी मुझे विग्रह सेवा में बहुत रुचि है, इसके लिए मैं नाम जप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे विग्रह सेवा में बहुत ज्यादा रुचि नहीं। तो आपको कुछ बेसिक मिनिमम नाम जप तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आचार्यों के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पाथ है। सो यू सम, और आपने अपने गुरु को वचन भी दिया है, जब आप लोग दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी को वचन देते हैं। तो इस प्रकार से हमको कुछ बेसिक मिनिमम तो नाम जप, कुछ बेसिक मिनिमम अर्चा विग्रह सेवा, पुस्तक का अध्ययन, ये करना चाहिए। और फिर अपने रुचि के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है उसको और ज्यादा कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। अंजलि माता जी का एक क्वेश्चन है, उनका हैंड रेज्ड है, उनको अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बेटा भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ है
मैं भी जैसे लेक्चर सुनती हूँ, यहाँ पे इंदौर में माताजी हैं जो बच्चों के भी लेक्चर्स देती हैं, तो मेरा बेटा उसमें जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने अभी और कुछ न्यू बैचेस स्टार्ट करी हैं बच्चों के लिए, तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे भी जो कजिन्स हैं उनके बच्चों को भी थोड़ा सा मैंने इसमें डालना चाहिए। तो जैसे मैंने अपने कजिन्स को फोन किया, उनको बोला कि आपने अपने बच्चों को डालना चाहिए, एटलीस्ट वो रिसाइट करना सीखेंगे भगवत गीता के श्लोकास एंड ऑल। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो ये पूछा, आपने अपने बेटे में क्या चेंजेस देखा? मैंने बोला एक तो वो बहुत कृष्णा कॉन्शियस हो गया है, अदर थिंग मेरे को ये सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि उसका नॉनवेज बिल्कुल बंद हो गया। पहले वो नॉनवेज लवर था, मतलब आप उसको 24/7 दो तो उसको बहुत अच्छा लगता था, अब वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं खाता है, उसकी स्मेल भी उसको इरिटेट करती है, वैसा हो गया। तो उनका रिप्लाई ये था कि माताजी अगर इस्कॉन वाले ऐसा बोलते हैं ना कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो मुझे मेरे बच्चे को नहीं डालना है इसमें। तो मैंने बोला मतलब उनके घर में एक्चुअली सब पूरी फैमिली नॉनवेज लवर है, तो मेरा रिप्लाई ये था कि आप फिलहाल कुछ बताइए मत अपने घर में, आप बच्चे को एक बार अटेंड करने दीजिए क्लास, फिर ग्रेजुअली बच्चा खुद ही अपनी इच्छा से जो भी उसे करना है, और ऐसा कहीं फोर्सफुल नहीं है कि आपको नॉनवेज छोड़ना ही है। पर मेरा जो रिप्लाई था कि मेरा बेटे ने छोड़ दिया, मुझे वो सबसे अच्छी बात लगती है, तो ये चीज के वो अगेंस्ट थे। तो ये चीज हम कैसे मतलब उनको ये करें कि आप एक बार स्टार्ट तो करिए, फिर आगे का कृष्ण मर्सी पे है, वो जो चाहेंगे वैसा करेंगे। क्योंकि बहुत फैमिली में ऐसा होता है कि बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं आप ठीक है लेक्चर करना है, गीता पढ़नी है, सब करो, लेकिन जो हमारे ईटिंग हैबिट्स है या जो है हमें ब्रेक नहीं करना है उसको। और आज प्रभु जी गोपाष्टमी भी है, अगर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं तो। बताएंगे गोपाष्टमी के बारे में भी। तो बेसिकली सब लोगों को स्वाद चाहिए। ये 2-3 इंच की जो जीवा है, उसके बाद जब नीचे गले से उतर जाता है, तो चाहे आपने नॉनवेज खाया है या वेज खाया है, क्या खाया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पेट भर जाता है तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो फर्क इतना है कि लोगों को एक स्वाद लगा हुआ है, और वो स्वाद इसके लिए है क्योंकि उन्हें कोई हायर टेस्ट नहीं मिला है ना। जैसे लोग नशा करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो उसका मुख्य कारण है स्वाद। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 2.59 भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये धीरे धीरे भक्ति के संग में रहते रहते, when a person gets higher taste, he automatically gives up lower taste. Actually, ISKCON society is not the international society for it's not a movement against non-vegetarian. We are not the international society for vegetarian consciousness, or we are not the international society for driving away non-vegetarian from the world. It is the international society for Krishna consciousness. ऐसे नए लोगों को जब हम प्रचार करते हैं, तो हमें उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस बताना चाहिए कि आप भक्ति में आइए, आपको अच्छा लगेगा। ये जो जीव हैं जो नॉनवेज खा रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसमें उनको रुचि आ रही है, उनको उसमें स्वाद मिल रहा है, और उनको ये लग रहा है कि नोबडी कैन बीट दिस। ये जो टेस्ट है, नोबडी कैन बीट इट, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। तो इसके लिए हमें उनको अनुभव देना चाहिए कृष्ण भक्ति का। जो छूटना है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो हमें लोगों को डराना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे प्रचार के माध्यम से हम लोगों को डरा देते हैं। आपको जब वो पूछेंगे कि आपके बच्चे में क्या चेंजेस देखे, तो आप कहिए कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया है, वो बहुत ओबीडेंट हो गया है, वो पंक्चुअल हो गया है, वो अपने स्टडीज को अच्छे से करता है, वो सुबह जल्दी उठता है। ये सारे उसमें अच्छे अच्छे चेंजेस हैं। तो इसके प्रति कोई व्यक्ति जनरली हेजिटेंट नहीं होगा, रेजिस्ट नहीं करेगा कि अरे ये सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें रिस्पेक्ट करे, क्योंकि कोई भी बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता है पेरेंट्स को। अगर आप बोलेंगे कि भक्त बनने के बाद हमारा बच्चा रिस्पेक्टफुल हो गया है, वो डिसिप्लिन्ड हो गया है, तो फिर वो जरूर पसंद करेंगे कि हाँ, बच्चे को तो डिसिप्लिन सिखाना है। भले ही माँ बाप डिसिप्लिन ना हो, लेकिन दूसरों को डिसिप्लिन बनाने में हर व्यक्ति आगे रहते हैं कि इनको डिसिप्लिन बनाओ। तो इसके लिए ऐसे चेंजेस बताने चाहिए। और अगर हम लोग कहेंगे कि वो नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, और खास करके अगर आपको उनका बैकग्राउंड पसंद पता है कि ये लोग नॉनवेज लवर्स हैं, तो फिर वो लोग नेचुरली, हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको नॉनवेज पसंद है और हम कह रहे हैं कि ये नॉनवेज छुड़ाने वाली संस्था है, तो मतलब वो नहीं आएंगे। हमें कहना चाहिए कि अरे आप कृष्ण का प्रसाद खाइए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको ऐसा मजा आएगा जो नॉनवेज में भी नहीं आएगा, आप ये बोलिए। तो फिर उनको लगेगा हाँ, बेटर टेस्ट है, इसमें जो टेस्ट है वो कहीं नहीं।
तो इस प्रकार से हमको हमारा पॉजिटिव मार्केटिंग करते रहना चाहिए, तो दैट विल इम्प्रेस द पीपल मोर देन अदर्स। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रश्न है? वी हैव टू चेक माधव कुमार प्रभु, हाउ लॉन्ग वी कैन गो? आई एम ओके एज लॉन्ग एज यू आर ओके। Prabhuji, as long as you are okay, we can go. Because Sunday is like that, Prabhuji, not restricted. ओके, ठीक है, वी कैन गो फॉर सम मोर टाइम। आई हैव टू स्पीक अबाउट गोपाष्टमी आल्सो, सो हाँ Prabhuji. गोपाष्टमी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन आई विल स्पीक अबाउट गोपाष्टमी, Okay. बिकॉज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गोपाष्टमी तो they can read also. Yes, Prabhuji. Okay. Thank you very much, Prabhuji. So is there any other question? I think one more hand was raised. So Ayushman Chauhan Prabhu. Yes, Prabhu जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इनको अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रतीक्षा चौहान हूँ। ठीक है, बोलिए। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मीन्स जैसे जो कुछ लोग रहते हैं, मतलब हम लोग को ना कुछ बातें बुरी लग जाती लोगों की, है ना? जैसे कभी कभी हम कुछ चीजें माइंड कर जाते हैं, उन चीजों को कैसे अवॉइड करें? मतलब मीन्स नेगेटिव लोगों को अवॉइड कैसे करें? जैसे हम लोगों की बात हाँ, ऐसे कभी कभी होता है ना एक्चुअली। मतलब आपके जीवन में जो नेगेटिव लोग आ रहे हैं, आप उनको अवॉइड कैसे करें, ये आप पूछ रहे हैं? जी प्रभु जी, बिल्कुल। आप कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि हम परम नियंता तो है नहीं कि हम डिसाइड करें कि कौन हमारे जीवन में आए और नेगेटिविटी दे या कौन आए और पॉजिटिविटी दे। सो वी कैन नॉट कंट्रोल पीपल, वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ एट बेस्ट। हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में क्या है? सिर्फ आपकी गाड़ी है। दूसरा व्यक्ति गाड़ी कैसे चला रहा है, उस पर आपका क्या नियंत्रण है? कई बार एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं कि हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं सही तरीके से, लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति आकर के ठोक देता है, तो उस पर हमारा क्या नियंत्रण है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम अपनी गाड़ी को सेफ कैसे चलाएं, है ना? दूसरों की गाड़ी सेफ चल रही है कि नहीं चल रही है, दैट वी कैन नॉट डू सो मच। सो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? नेगेटिविटी जब आती है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा भगवत गीता में। उन्होंने कहा दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ मुनि है, उसकी भाषा क्या है? वो भाषा का अर्थ मतलब फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, हिंदी, भोजपुरी ये नहीं है। भाषा का अर्थ यहाँ पर ये कहा गया है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, परिस्थितियों को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसके लिए भगवत गीता क्या है? एक लाइफ मैनेजमेंट बुक है, एक सेमिनार है, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि जीवन को कैसे व्यापन करना है, कैसे जीना है। तो चुनौतियों को आने दिया जाए, क्योंकि हमारी कोई रोक नहीं है कि कल क्या होगा। जैसे लॉकडाउन हो गया, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? हम लॉकडाउन हो गया है तो हम उसको पलट तो नहीं सकते। हम उस लॉकडाउन में अपने समय का कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमारे हाथ में, राइट? तो देयरफॉर पीपल विल कम। ये भौतिक संसार है, इसमें लोग आएंगे ही निश्चित, और वो नेगेटिविटी लेकर के आएंगे। आप अपने आप को इतना पॉजिटिवली सिचुएट कीजिए कि वो नेगेटिविटी से आप अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे समुद्र में लहरें आती रहेंगी, लेकिन अगर आप नौका में रहेंगे तो आप सूखे बने रहेंगे। उन लहरों के छलकने से जो जल है, जो पानी है, वो आपको गीला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोट में स्थित हैं। इस प्रकार से आप जीवन में भगवत गीता के या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओ, तब तुम जीवन में मिलने वाले सारे चुनौतियों का ज्ञान के दृष्टि से सामना कर सकोगे। तो इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, दिव्य ज्ञान। भगवत गीता को रोज पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़िए, तो आने दीजिए नेगेटिविटी। और ये केवल आपके और हमारे जीवन की बात नहीं है, जितने भक्त होकर के गए संसार में, सबके जीवन में बहुत नेगेटिविटी आई।
पांडवों के जीवन में देखिए, वो तो हमेशा दुर्योधन को मित्र और भाई मानते थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा उनको अपना शत्रु मानता था। अब इससे बड़ी क्या नेगेटिविटी। और आपको और हमको तो शायद कोई मारने की योजना नहीं बना रहा है, कोई मतलब सरेआम बेइज्जत करने की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन पांडवों के साथ तो यही हो रहा था। तो उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, कृष्ण का संग रखा, पॉजिटिविटी में सिचुएटेड रहे, और परिणाम ये हुआ कि कितनी ही नेगेटिविटी आती रही, वो हमेशा अपने आप को स्थिर मति से आगे जीवन व्यापन करते रहे। दे डिड नॉट गेट अफेक्टेड। सो स्टे इन ट्यून विथ भगवद गीता, read the Srimad Bhagavatam daily and keep on hearing lectures, and negativity का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, सो is there any other question or we should end with Gopashtami? यस प्रभु जी, गोपाष्टमी से रिलेटेड एक चैट में क्वेश्चन आया कि हाउ कैन वी सेलिब्रेट गोपाष्टमी टुडे। तो आप उसी में बहुत सुंदर दिन है आज, गोपाष्टमी है। ये ब्रज में एक बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है। भगवान का प्रमोशन हुआ आज के दिन। वो अप्रेंटाइज से परमानेंट बन गए, रोल पे आ गए भगवान। ही वाज ऑन द पे रोल। वो वत्सपाल से गोपाल बने। भगवान को एक नाम मिला है आज के दिन, गोपाल, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ नाम। गोपालक बने वो, गायों का पालन करने लगे, गायों को चराने लगे। 5वें वर्ष की उम्र के अंत में जब भगवान ने, तब तक वत्स को चरा रहे थे, छोटे छोटे बछड़ों को ले जाया करते थे, लेकिन उनकी हट ये थी कि हमको गायों को चराने दिया जाए। तो वो इसके लिए थी क्योंकि गौवे बहुत जन्मों से इंतजार कर रही थी कि कब ये कृष्ण आएंगे और लीला में हमें चराएंगे। तो भगवान अपने भक्तों के उस आदान प्रदान को पूरा करने के लिए गायों को चराना चाहते थे, और इसके लिए वो हमेशा नंद महाराज और यशोदा मैया को सिफारिश करते थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत, देखिए ऐसी विडंबना है उस भौतिक संसार में कि बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं जल्दी। जो 3 साल 5 साल का बच्चा है उसको हमेशा लोग बोलते हैं अरे तुम छोटा है, तो बोलता है नहीं ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। और जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो यंग दिखना चाहते हैं, अपने बालों को पेंट करते रहते हैं, सफेदी नहीं दिखाना चाहते, उसको काला रंग करके। तो बच्चे बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े लोग छोटा बनना चाहते हैं, भौतिक संसार है। तो कृष्ण ने ये परामर्श दिया कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं गाय को चरा लूंगा। तो नंद महाराज और यशोदा मैया ने आज के दिन उनको ये गायों को चराने की सेवा दी, उनको गोप बनाया। तो इसके लिए गोपाष्टमी है। ये इस कार्तिक महीने के अंतर्गत ये जो अष्टमी आती है दूसरे पक्ष में, उसकी अष्टमी है। और भगवान का आज के दिन बहुत सुंदर सेलिब्रेशन हुआ ब्रज में। आज पहली बार भगवान गायों को चराने के लिए जाते हैं। इसके लिए आज वृंदावन में क्या होता है, गो पूजा होती है। सबसे पहले गायों की पूजा करते हैं, कौन, स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और इन पूजा करने के पश्चात भगवान गायों को लेकर के चलते हैं। ऐसे भगवान जो है, कृष्ण सुबह सुबह जाते हैं, अपना जो कलेवा है उसको बांध करके पोटली में लेकर के जाते हैं। सुबह 6-7 बजे चले जाते हैं, और फिर शाम को संध्या के समय, सर्दी के दिन है तो 5-6 बजे तक वापस आते हैं। तो ये जो लीला है, अवनी लीला, भगवान के रिटर्न होने की लीला, भगवान के गोचारण में जाने की लीला, बहुत सुंदर लीलाओं में से एक लीला। जब भगवान जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और क्या नजरों से, कैसे भगवान गायों के साथ आदान प्रदान करते हुए, गोपियों के साथ नजर मिलाते हुए, ब्रज के गलियों से गुजरते हुए, और जैसे जैसे भगवान कृष्ण निकलते हैं अपनी गायों के साथ, वैसे वैसे अन्य ग्वाल बाल अपनी गायों को उस गायों के झुंड में मिला करके एक बड़ा, जैसे कई सारी धाराएं एक नदी में जुड़ते जुड़ते वो नदी बढ़ती चली जाती है, ऐसे गायों का झुंड बढ़ते चला जाता है, ग्वाल बालों का झुंड बढ़ते चला जाता है। और हंसते खेलते ये लोग 12 वनों में, अलग अलग वनों में विचरण करते हैं। कभी काम्य वन जाते हैं, कभी मधु वन जाते हैं, आज ताल वन जाएंगे, कल कुमुद वन जाएंगे। इस प्रकार से रोज का प्लानिंग होता है। प्लानिंग कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं कि आज यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे। और मित्रों को पूछते हैं, भैया बताओ इस वन में क्या श्रेष्ठ चीज है। तो कभी कोई मित्र बोलता है, अरे कृष्ण कन्हैया, तू तो सारे वनों में घुमाता है गायों को, लेकिन वो जो ताल वन के जो ताल के फल है उसका आस्वादन तो हमने आज तक नहीं किया, बहुत लाजवाब है, तो आज हम ताल वन जाएंगे। ऐसे करके ये वन में विचरण होता रहता है। तो उस समय भगवान की उम्र 5 साल की थी,
और 5 साल की उम्र में वो एक गोचारण करने के लिए प्रारंभ किए, इसके लिए गोपाष्टमी है। उधर राधा रानी जो थी वो सोचने लगी कि कृष्ण गोप बन गए और मैं अभी तक गोप नहीं बनी। वैसे तो वो कन्या है तो कन्याएं गोप का कार्य नहीं करती है, लेकिन कृष्ण को इमिटेट करने के लिए राधा रानी ने भी गोप का वेश धारण किया आज के दिन। इसके लिए ब्रज के मंदिरों में राधा रानी को गोप के वेश में डेकोरेट किया जाता है कि ताकि वो कृष्ण के साथ जा सके एक गोप बन करके। इसके लिए राधा रानी को भी गोप का वेश पहनाया जाता है। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन कराए जाते हैं ब्रज में गोपाष्टमी के दिन। तो गौशाला में लोग आज प्रसाद खाते हैं, गायों की पूजा करने के बाद बड़ा भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है, और ये सारा महोत्सव तो ब्रज में ही मनाया जा सकता है बड़े इत्मीनान से, आनंद से। गोपाष्टमी का महोत्सव, सैकड़ों भक्त जुड़े हैं, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज लेक्चर दे रहे हैं ये गोपाष्टमी का। अब तो हो गया है, भक्त प्रसाद खा रहे होंगे। तो मुझे भी जाना था, लेकिन माधव कुमार प्रभु जी ने कहा था कि ये क्लास देने के लिए, इसके लिए मैं नहीं गया, लेकिन अब मैं जाऊंगा वहां पर गौशाला। तो ये बहुत अच्छा महोत्सव है। और कुछ आचार्यों का तिरुभाव दिन भी है आज। मेरे ख्याल से धनंजय पंडित प्रभु का और श्रीनिवास आचार्य का और गदाधर पंडित का, कई आचार्यों का तिरुभाव दिन भी है। तो ये जो ब्रज का जो पूरा वातावरण है कृष्णमय हो जाता है, और भगवान आज के दिन ऐसा मुक्ति का अनुभव करते हैं, उनको लगता है कि हाँ, आज मुझे मुक्ति मिल गई है, मुझे मतलब सम्मान मिल गया है, आज मुझे रिकॉग्निशन मिला है कि हाँ तो भाई तुम गाय को चरा सकते हो। वो लेकर के निकलते हैं गायों को, और फिर गोचारण का बहुत सुंदर प्रसंग है, भागवतम में वर्णन है। तो ये सारी लीलाएं आज होती है। ये है इसका मेन महोत्सव, गोपाष्टमी महोत्सव। वैसे ये कार्तिक के महीने का ऑलमोस्ट लास्ट फेस्टिवल है। इसके बाद बस तुलसी शालिग्राम विवाह का महोत्सव होता है, जो आखिरी दिन होता है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। तो उसी के साथ ये कार्तिक महीना भी समाप्त होता है। तो श्रृंखला में ऑलमोस्ट दिस इज वन ऑफ द लास्ट फेस्टिवल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। गोपाष्टमी महोत्सव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओके, जय। हिज ग्रेस रविंद्र चैतन्य प्रभु की जय। जय। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। धाम में है वो बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम अटेंड कर सकते थे वृंदावन में, लेकिन फिर भी वो कृपा करके हमें संग दिए हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वास्तव में धन्यवाद तो आप सभी भक्तों का देना चाहिए कि आप लोग सब लोग जुड़े हैं, मुझे कुछ कहने का आपने अवसर दिया। और ये बहुत प्रेरणादायी बात है कि आप सब लोग इतना, मतलब नया जब प्रचार केंद्र कोई चालू होता है तो बहुत इंस्पिरेशन लगता है। तो आप लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय प्रभु जी। हरि बोल।